children, welcome to today's CBS class. Do you remember what we had studied in the last class? Okay, I will help you. In the last class, we had studied about the importance of water and its sources. That means we had studied about the different places from where we get water, like river, pond, waterfall, stream, well, hand pump, then sea, lake, etc. So we had discussed about all these sources of water. We had categorized them into two. One is surface water and second one is groundwater. And in today's class, we will proceed to the next session, next part of this chapter, that is uses of water. Children, if you will think about the activities that we start from the morning till we go to the bed, definitely we will find a lot of activities for which water is required. Think, for example, you can see in the picture a boy. What is he doing? Yes, he is drinking water. So, water is required for drinking. Water is required to quench our thirst. प्यास बुझाने के लिए हमें पानी की जरूरत है. Okay, so the first and foremost use is drinking. For drinking, we need pure and safe water. We can't drink any water that is available on this earth. Even we can't drink the saline water which is present in the sea. Right? So, for drinking, we need water. Next is, you can see washing hands. You can see in the picture a boy. He is washing his hands. Doctor always suggests you to wash your hand properly before eating. We should wash our hand properly to protect ourselves from different kinds of harmful germs and bacteria, so that we can lead a healthy life. So, हाथ धोने के लिए हमें पानी की ज़रूरत है. Can we wash our hand without water? Impossible. You can say that we can use sanitizer. Yes, to some extent, but not always. Right? Nowadays you can see about that coronavirus. The doctor always suggests to wash the hands frequently for 20 seconds. Right? So many things are there. Next, yes, bathing, नहाना. नहाने के लिए भी पानी की ज़रूरत है. You can see a boy is taking bath. It's a good habit to take bath every day. Right? So to maintain a healthy life, we should take bath every day and in a proper way. So नहाने के लिए भी पानी की ज़रूरत है.
we can take bath in the bathroom, or sometimes we take bath in the river, in the lake, or in the pond also. Next, for washing clothes, you can see some women, they are washing clothes in a river. So in our home also, our mother and some family members, sometimes we also wash our clothes. So for washing clothes, we need water. Without water, we can't wash our clothes. For cleaning utensils, what do you mean by utensils? Bartan. So you can see in the picture, somebody is washing utensils under the tap. So for washing utensils, we need water. Next, it's very important. Sometimes we think that we only need water. We only drink water. But if you will think about the first chapter, the Poonam Sudhiyar, while reading the first chapter, we saw that every living things, the living world, they need water. Even the trees, plants, animals, birds, insects, they need water. You can see here a deer is drinking water in the river. So likewise, the birds, they also need water. Cows, buffaloes, sheep, goat, elephant, tiger, right? All the animals, they need water for their survival. Even the plants and the trees, without water, they can't survive, right? You can see for bathing, here somebody is bathing his pet dog. So for that purpose also we need water. Next one is irrigation. Children, you may not be knowing about irrigation because it is related to farming. किसान जो खेती करता है और अपनी जो फसल है, चाहे वो धान, गेहूँ, बाजरा, मकई, मूंगफली, मूंग, उड़द, किसी का भी, चाहे सब्जी का खेती हो, हर खेती के लिए पानी की ज़रूरत है. तो इरिगेशन में अलग अलग तरह का इरिगेशन है. ये स्प्रिंकल इरिगेशन है. यू कैन सी बीच बीच में स्प्रिंकल स्प्रे करने का जैसा इक्विपमेंट्स लगा हुआ है, उसमें चारों तरफ स्प्रे हो रहा है. तो वो आप धीरे आगे हायर क्लासेस में पढ़ोगे इरिगेशन कितनी तरह का है. सो ये स्प्रिंकल इरिगेशन में आप देख सकते हो चारों तरफ कम पानी में चारों तरफ उसको हर पौधे को पानी मिल सकता है. सो द प्रोसेस इज कॉल्ड इरिगेशन. And without water we can't irrigate, we can't even do farming. बिना पानी का तो खेती का सवाल ही नहीं होता है, राइट. सो खेती करने के लिए भी हमें पानी की ज़रूरत है. उसके अलावा आपके पास, आपके सामने आप देख सकते हो 4 पिक्चर हैं. इसमें भी आपको बहुत सारे आइडियाज़ मिल जाएंगे कि कहाँ कहाँ हमें पानी की ज़रूरत होती है. फॉर ड्रिंकिंग, for agriculture, and for industries and transportation. Industries यानी कारखाने, जो फैक्ट्रीज पे, हर फैक्ट्री के लिए पानी की ज़रूरत है, राइट. तो जो भी इंडस्ट्रीज होते हैं, चाहे वो स्टील के हो या कार फैक्ट्रीज हो या अलग अलग तरह का जो इंडस्ट्रीज होते हैं या फूड इंडस्ट्रीज हो, तो सबके लिए पानी की ज़रूरत है. उसी तरह और एक इम्पॉर्टेंट काम है जो कि यूज़ है पानी का, वो है ट्रांसपोर्टेशन. जैसे कि पानी के थ्रू विद द हेल्प ऑफ बोट, शिप, देन वी ट्रांसपोर्ट डिफरेंट थिंग, वी कैरी डिफरेंट थिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ओके, जैसे कि समुद्र के रास्ते, बड़े बड़े शिप में, कार्गो में बहुत सारे चीज़ें, जैसे कि पेट्रोलियम हो गया या बहुत सारे रॉ मटेरियल्स दूसरे कंट्री से हमारे कंट्री में आते हैं, या हमारे कंट्री का जो
प्रोडक्ट से हम बाहर एक्सपोर्ट करते हैं, दूसरे कंट्रीज में भेजते हैं, तो वो शिप में भेजते हैं, क्योंकि ज़्यादा अमाउंट में हम शिप में भेज सकते हैं. सो फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑल्सो वी यूज़ वाटर. जैसे कि बड़ा नदी है, वहाँ पुल नहीं है, ब्रिज नहीं है, वी यूज़ डिफरेंट बोट्स टू क्रॉस द रिवर, राइट. सो ऐसे बहुत सारे जगह आप देखे होंगे जहाँ आपको बोट में या स्टीमर में या लॉन्च में आपको जाना पड़ता है. सो फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑल्सो वी नीड वाटर, वी यूज़ वाटर. इसमें नेक्स्ट स्लाइड में आप देख सकते हो कैसे आपके जैसे छोटा बच्चा वो ड्राइंग के माध्यम से एक्सप्रेस कर रहा है कि उसमें पानी का क्या क्या यूज़ है. फॉर ड्रिंकिंग, वॉशिंग हैंड्स, ब्रशिंग टीथ, bathing, then cooking, watering plants, right? Normally we used to water the plants that we have in our garden. So इसके अलावा बहुत सारे ऐसे यूज़ हैं जो आप सोच सकते हो, जिसके बिना हम पानी जो कि हम बिना पानी का कर नहीं सकते. जैसे रोइंग अ बोट, नाव चलाना, राइट. नीडिंग डव, जैसे कि आटा गूंदना, है ना. मॉपिंग द फ्लोर, पोछा लगाना, घर में पोछा लगाना, कपड़ा धोना, बर्तन धोना, ऐसे बहुत सारे काम है. जैसे कि आपका वॉशिंग द व्हीकल्स, हमें अपने कार या बाइक या जो भी व्हीकल है उसे हम धोते हैं, तो धोने के लिए भी पानी की ज़रूरत पड़ती है. ऐसे बहुत सारे काम है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है, राइट. जैसे कि कंस्ट्रक्टिंग अ बिल्डिंग, कोई बिल्डिंग बनाना है, कोई हम जैसे कंस्ट्रक्शन का हम कुछ कर रहे हैं, फॉर दैट ऑल्सो वी नीड वाटर. विदाउट वाटर वी कांट कंस्ट्रक्ट इट. आप पूछोगे सर कैसे, उसमें तो सीमेंट, ईंट, ये सब लगती है. इफ़ यू विल विजिट अ कंस्ट्रक्शन साइट, देन डेफिनेटली यू कैन गेट दैट एक्सपीरियंस. यू विल कम टू नो. जैसे कि सीमेंट, उसमें रेती, इसको मिक्स करने के लिए उसमें पानी भी डाला जाता है. ऐसे बहुत सारे यूज़ है. जैसे कि एक दीवार बनाने के बाद उसमें बार बार पानी स्प्रे किया जाता है कुछ दिनों तक, ताकि वो अच्छे से स्ट्रांग हो जाए. तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हम पानी की यूज़ करते हैं हमारे डेली लाइफ में. सो यही तो है पानी का इम्पोर्टेंस, जो हम फील नहीं करते, जो हम कभी उस चीज़ के बारे में सोचते नहीं है. और पानी को हम जितना यूज़ करना चाहिए, जितना ज़रूरत है उससे ज़्यादा यूज़ करते हैं, वेस्ट करते हैं, राइट. उसके बाद और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हम जो यहाँ बात करने वाले हैं वो है पानी का अलग अलग रूप, फॉर्म्स ऑफ वाटर. मैंने आपको जो सोर्सेस पढ़ाया था, पानी कहाँ कहाँ से मिलते हैं, उसमें एक चीज आपको बताया था, ग्लेशियर. यानी पानी धरती पर ग्लेशियर के फॉर्म में भी मौजूद है. व्हाट इज ग्लेशियर? ये वो आपको अभी हम जब डिस्कशन करेंगे उसमें समझ में आएगा कि पानी का कौन सा फॉर्म होता है ग्लेशियर. नॉर्मली वाटर हैज 3 forms. What are they? In nature, water is found in 3 forms. First one is solid, second one liquid, and third one gas. Solid जो कि हार्ड फॉर्म है, जिसको हम आइस या स्नो या जैसे कि हम ओले गिरते हैं, दैट इज ऑल्सो द हार्ड फॉर्म ऑफ या सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर. कई बार अभी पिछले कुछ ही दिनों में जगदलपुर में और भी बहुत सारे एरिया में ओले गिरे थे, बड़े बड़े ओले गिरे थे, आप लोग भी देखे होंगे. सो दैट इज वन काइंड ऑफ आइस, सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर. एंड व्हाट इज द लिक्विड फॉर्म? जो नॉर्मल वाटर जो हम यूज करते हैं, that is the liquid form. And gas, that is water vapor. From the picture it will be more clearer for you. You can see here some ice cubes are available.
जो ग्लेशियर के बारे में बात हो रही थी वो आइस ही है। आइस के रूप में, बर्फ के रूप में, जो बड़े बड़े बर्फ के चट्टान जिसको हम कहते हैं, बर्फ के चट्टान के रूप में पहाड़ की ऊंची चोटी पर, और बहुत सारे जो पोलर एरिया है, धरती का पोलर एरिया, जो पोलर एरिया जिसे कहते हैं वो आपको बाद में समझाएंगे, जैसे कि आपका नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, अंटार्कटिका, ये सारे जो एरिया है, इसमें क्या है, जो पूरा जगह, पूरा जो लैंड है, दैट रिमेन्स कवर्ड विथ स्नो, राइट। सो वो है वाटर का सॉलिड फॉर्म। कुछ नहीं तो हम अपने घर में भी हम, जैसे कि हम रेफ्रिजरेटर में, फ्रीजर के अंदर आप जब जैसे कि उस रखते हैं, आइस क्यूब बनाते हैं, तो उसको भी आप वहाँ से भी आप देख सकते हो कि आइस होता कैसे, आप लोग देखे भी होंगे। दैट इज द सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर। वो कुछ नहीं, सिर्फ पानी है, ठीक है। सो पानी का टेम्परेचर जब 0 डिग्री में आ जाता है तब वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है। सो दिस इज द सॉलिड फॉर्म ऑफ द वाटर, एंड यू कैन सी दिस इज द नॉर्मल वाटर, दिस इज द लिक्विड फॉर्म, जिसे हम यूज करते हैं अलग अलग काम में, राइट। यू कैन सी एक ग्लास में नॉर्मल वाटर है, एंड लास्ट ये है, आप देख सकते हो एक बर्तन में पानी है, उबल रहा है, बॉईल हो रहा है। तो जब पानी को उबालते हैं उसका टेम्परेचर बढ़ता है। इस सारी चीज़ के बारे में आपको और डिटेल्स में नेक्स्ट क्लासेस में आप पढ़ोगे, कैसे उबलता है, क्यों वाटर वेपर में क्यों कन्वर्ट होता है, कैसे कन्वर्ट होता है। बट यहाँ अब जो भाप निकल रहा है, आप जो देख रहे हो, दैट इज द गैसेस फॉर्म ऑफ वाटर। वो गैसीय अवस्था है, जो भाप निकलता है, जिसको स्टीम कहते हैं। इवन आप जब मम्मी किचन में खाना बनाती है, आप देखे होंगे प्रेशर कुकर में जो सीटी बजता है, वो प्रेशर कुकर सीटी बजते समय जो साइड से निकलता है, दैट इज द स्टीम और वाटर वेपर, दैट इज द गैसेस फॉर्म ऑफ वाटर। तो पानी का आपको कोई पूछेगा हाउ मेनी फॉर्म्स आर देयर, सो योर आंसर शुड बी 3 फॉर्म्स। फर्स्ट सॉलिड, सेकंड लिक्विड, थर्ड गैस, राइट। सो तीनों अवस्था का मैंने एग्जांपल्स पे आपको बताया, समझाया। ये सारी चीज आपको क्लियर हो गए होंगे। ये सारी चीज को आपको नोटबुक में भी नोट करना है, ओके। एंड द नेक्स्ट क्लास वी विल कंप्लीट द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। थैंक यू।